first roadshow chair, and we're very excited and really looking forward to having this interaction with all of you. To have the first gentleman on stage and speak a little bit about the company, we'd like to invite Mr. Aditya Raturi from IIFL Capital. Please, Aditya. Good afternoon, everyone. On behalf of CleanMax Enviro Energy Solutions Limited, IIFL Capital Services, and my fellow book running lead managers, I wholeheartedly welcome you to the press meet. Joining us today, we have the senior management of CleanMax, Mr. Kuldeep Jain, Chairperson and Managing Director, and Mr. Nikunj Godawat, CFO. Energy. It's one of the most critical pieces for growth of any economy, and renewable energy is what directly supports it with environmental responsibility. It is also the cheapest form of power available in India today, and it takes the least time to execute and bring it online. The biggest consumer of power in India is the commercial and industrial sector, which accounts for 50% of the power consumption in India. Today, we have a company who has been providing energy to such corporate and industrial customers for over 15 years now. CleanMax as an organization is a testimony of meticulous planning and flawless execution to reach the scale which they have, and today they are the largest CNI renewable energy provider in India. Across the broader renewable space and the listed entities, they are the fastest growing in terms of EBITDA growth. As of October 31st, 2025, CleanMax has an operational capacity of approximately 3 gigawatt with additional 3 gigawatt of contracted capacity, serving a base of 550 customers, more than 550 customers, which include marquee Indian corporates and MNCs. We are extremely glad to launch the CleanMax IPO, and I will just share with you the issue details if we can have this slide, please. Great, thank you. So the issue will open for subscription on 23rd February, Monday. It will remain open till 25th February, Wednesday. The anchor bidding will be one working day prior, that is on 20th February, Friday this week. The IPO, total size of the IPO is 3100 crore and with an employee reservation of 30 crores. So net issue of 3070 crores. Price band for the IPO has been set at in the range of rupees 1000 to 1053. This is a Regulation 6(1) IPO with 50% reserved for institutional investors, 35% reserved for retail investors, and 15% reserved for non-institutional investors. We look forward to your support in making this IPO grand success. आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ले जाऊंगा। मेरा नाम है कुलदीप, आई एम दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CleanMax। मैंने कंपनी चालू की, आई फाउंडेड दिस कंपनी 2011 में। मेरा अहमदाबाद से पुराना रिश्ता है, मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ता था IIM अहमदाबाद में, दैट वाज 97 टू 99। आज भी IIM अहमदाबाद का एक एंडाउमेंट फंड है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मैं आज भी हूँ, अक्सर आता रहता हूँ। और ये कंपनी जब हमने चालू की 2011 में, तो इसका पर्पस या मिशन ये है कि टू बी अ नेट जीरो पार्टनर टू कॉर्पोरेट्स। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो देश का आधा बिजली कंज्यूम करता है और उसके हम पार्टनर हैं इन दिस ग्रीन एनर्जी जर्नी। एंड ये कंपनी का 16वां साल है, सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इट इज। प्रेजेंटेशन गुजराती में है, मैं गुजराती इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा कि मैं पूरा प्रेजेंटेशन गुजराती में दे सकूं, बट at least text is in Gujarati and the way I'm managing is यहाँ पे एक presentation है English में, so I know कि क्या content है, ठीक है। so उस हिसाब से चालू करते हैं। ये IIFL के बैंकर्स इसके थ्रू गए। ये presentation 4 विभाग में बटा हुआ है। एक तो who are we, थोड़ा बहुत हमारे बारे में इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या खास ग्रोथ थीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, और उसमें एक है डेटा एंड एआई, दूसरा है कॉर्पोरेट रिन्यूएबल प्रोक्योरमेंट, तो ये 2 ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। और चौथा डायमेंशन ये है कि हम मार्केट लीडर हैं तो क्यों हैं, हम जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, और उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो ये 4 विभाग हैं, आई विल टेक यू थ्रू दीस 4। यूटिलिटी कंपनी एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है, बिडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेकी या एनटीपीसी, ये बिडिंग एजेंसीज हैं, वो बिड करते हैं। आप रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, आप अपना लोएस्ट टैरिफ दो, जो सबसे कम टैरिफ देगा क्या
वो विनर माना जाएगा। इसको कहते हैं L1 बिडिंग। आप तो जानते हैं ये सरकारी चीज है, उसमें L1 बिडिंग होता है। तो लोएस्ट टैरिफ देके आप जीतते हो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का टैरिफ उस मार्केट एनवायरनमेंट में कम होता है, तो लगभग सोलर पावर का 2.5 रुपए या इससे भी कम में टैरिफ होता है, और विंड पावर का 3-3.25 रुपया में टैरिफ होता है। लेकिन फायदा क्या है इसमें? एक साथ आप अगर लोएस्ट टैरिफ दो तो बैठे बिठाए आपको 500 मेगावाट मिल जाते हैं, तो वॉल्यूम का फायदा है लेकिन रेट कम है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे कस्टमर्स को बेचते हैं। हमारा एवरेज साइज पर डील केवल 13 मेगावाट का होता है। हालांकि हम काम करते हैं देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। तो हमारे 83% ऑफ आवर कस्टमर्स आर क्रेडिट रेटेड AA, AAA, MNC। बट वो मार्केट में कंज्यूमर के पास आप डायरेक्टली जाओ तो एवरेज टिकट साइज जो है वो 13 मेगावाट का होता है। तो बड़ी मेहनत लगती है, 13 मेगावाट के बहुत सारे डील्स होते हैं, तब जाके हमारे जैसा वॉल्यूम बनता है। लेकिन ये सब मेहनत मुशक्कत करने का फायदा क्या हुआ कि भाई कोई भी धंधे में आप डायरेक्टली कस्टमर के पास जाओ, आपके पास कस्टमर सपोर्ट है, पुल है, रिपीट बिजनेस है, तो टैरिफ ज्यादा मिलता है। होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में रेट का तो हर समय फर्क होता ही है, राइट। तो हमारा जो एवरेज टैरिफ है वो है 3 रुपए 76 पैसे कंपेयर्ड टू 2.5 से 3 रुपया। सो ऑब्वियसली इट्स अ टैरिफ प्रीमियम, बट ज्यादा काम लगता है, ज्यादा एफर्ट लगता है, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, हर कस्टमर को 13 मेगावाट बेचो। और इसमें हमारा ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि लगभग हम ये काम 15-16 सालों से कर रहे हैं। तो वी आर नंबर 1 इन इंडिया। वी लिटरली इन्वेंटेड द इंडस्ट्री। 2011 से चालू किया है ये। तो 555 कस्टमर हो गए हैं हमारे क्या, और हर साल जितना भी वॉल्यूम करते हैं उसमें से लगभग 80% हमारा उसी क्लाइंट से है कि रिपीट कस्टमर से आता है। तो उसे सहूलियत हो जाती है कि इतना अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके 80% तो उसी क्लाइंट से आ जाते हैं। और दूसरा एक थोड़ा कंपैरिजन में से यूटिलिटी वर्सेस एस कंपैरिजन, ये यहाँ पे लिस्टेड कंपनी जो सारी हैं या जिसने DRHP फाइल किया है उसका कंपैरिजन दिया है। एंड यदि कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहे, हमारा IPO आ रहा है तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि आप पैसा लगाओ, राइट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हर समय 2 खास डायमेंशन होती हैं। एक तो होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिटर्न्स, राइट। पहला डायमेंशन है ग्रोथ। तो ग्रोथ देखें तो क्लीन मैक्स पहला बार ये है, क्लीन मैक्स का पिछले 3 साल में एबिटा का ग्रोथ सालाना यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज अबाउट 58%, राइट। इंडस्ट्री एवरेज यदि आप देखें तो वो है 16%, और हर कंपनी के नंबर दिए हुए हैं 6 और 30% के बीच में बाकी लोगों का ग्रोथ है। एवरेज 16% है इंडस्ट्री का, हमारा 58%। दूसरा कंपैरिजन है रिटर्न्स। मैं आपको समझाना चाहूंगा रिटर्न्स क्यों आवश्यक है। ये बिजनेस में, रिन्यूएबल पावर में, मैंने एक्चुअली लाइफ में, मैं तो 12 साल कंसल्टेंट था, ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा है मैंने जिसमें 93-94% ग्रॉस मार्जिन। कि एक बार हम जब बिजली बेचते हैं तो केवल उसका 5% और सो कॉस्ट होता है, 95% ग्रॉस मार्जिन होता है। और ये इसलिए है, मैं हर समय मजाक करता हूँ, इसलिए है क्योंकि सूर्यदेव और वायुदेव और पवन देव तो पैसे लेते नहीं है। क्या आप कोयले की बिजली बनाओ तो कोयले के पैसे देना है, इसका फ्यूल कॉस्ट टेक्निकली। आप डीजल से पावर बनाओ तो डीजल के पैसे देने हैं, गैस से पावर बनाओ गैस के पैसे देने हैं, बट बिकॉज देयर इज नो फ्यूल कॉस्ट दिस इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। और ये हमारा ही नहीं है, ये इंडस्ट्री में सबका है। 93-94% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है। देयरफॉर अपन रिन्यूएबल में रिटर्न्स अगर देखें, कोई और अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हो, जैसे मैंने जैकेट पहना है, तो कोई कपड़ा बनाता हो तो रेमंड का मार्जिन अलग रहेगा, डिजैम का मार्जिन अलग रहेगा, लेकिन रिन्यूएबल्स में ग्रॉस मार्जिन सबका 93-94% ही होता है। तो मैट्रिक खास करके क्या है कि भाई रिटर्न क्या बनता है, मेरे को अगर 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक फॉर एन इन्वेस्टर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न्स मैट्रिक है, उस पे हाउ डू वी कंपेयर, उस पे इसको कहते हैं ग्रॉस ब्लॉक टू एबिटा। ग्रॉस ब्लॉक यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 रुपया एबिटा कमाने के लिए आपको हमको करना पड़ता है 5 रुपए 80 पैसे का इन्वेस्टमेंट।
ये आंकड़े का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया कमाने के लिए हम लोग करते हैं 5 रुपये 80 पैसे का इन्वेस्टमेंट, और बाकी इंडस्ट्री मीडियन अगर अपन देखें तो 7.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ता है 1 रुपया कमाने के लिए। तो वी आर मोर कैपिटल एफिशिएंट, ठीक है। ये जो फर्क है ये ऐसा लग रहा है कि केवल अरे 1.5-2 रुपए का फर्क है, 1.5-2 रुपए हजारों करोड़ रुपए है। परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो ये CleanMax is 28% more capital efficient than the industry median. So we have to put 28% less capital to work. ऐसा क्यों है? ऐसा कॉस्ट साइड पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सोलर या विंड पावर प्लांट लगाते हैं सब कंपनीज का कॉस्ट लगभग सेम आता है, क्योंकि सोलर मॉड्यूल कमोडिटी है, केबल कमोडिटी है, सरिया यानी कि स्टील कमोडिटी है, विंड टर्बाइन इज कमोडिटी है। ऐसा किसी का बहुत अलग बाइंग कॉस्ट नहीं है। फर्क ये है बाकी प्लेयर होलसेल मार्केट में, हम रिटेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में टैरिफ पर यूनिट ज्यादा है, टैरिफ पर यूनिट ज्यादा होने से एबिटा पर मेगावाट ज्यादा है, राइट। इसलिए हमारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी 28% सुपीरियर टू इंडस्ट्री पीयर्स। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी शेयर खरीदता है सपोज, तो दो खास मेट्रिक होते हैं, एक तो है ग्रोथ, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोथ पे अपन ने देखा CleanMax is 58% growth versus industry median of 16%. दूसरा profitability as measured by capital efficiency in our business, CleanMax is 28% more capital efficient than others. और ये benefit है कि हम industry leader हैं in the more profitable part of the business of renewables, and therefore we have these kind of superior growth as well as superior capital productivity. जहाँ पे हमने 10x growth देखा है in the last 1.5 years. And very big business with all the big global big tech companies जैसे कि Google, Amazon, Apple वगैरह वगैरह। दूसरा सेगमेंट है बाकी सारे पावर कंज्यूमर्स इन इंडिया, all the factories and so on। वहाँ पे भी क्योंकि कॉस्ट सेविंग अच्छी मात्रा में है, अच्छा काम करने के लिए, तो पेनिट्रेशन इज ग्रोइंग फास्ट। तो ये दो कारणवश हमारी भी ग्रोथ काफी फास्ट है। आपने देखा कि हमारा एवरेज ग्रोथ रेट लास्ट 3 इयर्स इज 58%, इंडस्ट्री एवरेज इज 16%, राइट। दूसरा 3000 मेगावाट लगभग हमारा बन चुका है, 3000 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी अगले 2 साल में लगाने के लिए, तो उस हिसाब से भी इट्स आल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। और हमारे बहुत सारे टॉप के कस्टमर्स हैं, कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमारे DRHP में भी हैं। तो जैसे देश का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, राइट, बट मेक इन इंडिया विद चीपर ग्रीनर पावर, राइट। और वो सब अडॉप्ट कौन कर रहे हैं? हर कंज्यूमर अडॉप्ट कर रहा है। ये कंज्यूमर्स के नाम हैं। अपन आज अहमदाबाद में हैं, हमारे गुजरात के कस्टमर्स वेल्सपन बड़ा कस्टमर है हमारा, UPL, अपार, और इसमें से गुजरात में कौन है? आई थिंक BSF फॉर देयर गुजरात फैक्ट्री, MRF फॉर देयर गुजरात फैक्ट्री, you know, many others, right? But we are in 10 states, so it's not just Gujarat. Gujarat is one of our largest markets. In fact, हमारे राजकोट में दफ्तर भी है, and बहुत सारे plants वगैरह हैं वहाँ पे।